Hi dear students, welcome back to our SST class, and this is Ayub sir. I welcome you all in our SST class. Okay, so as we have started our second topic of geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. We have seen the first part or the first part of the topic, and in that topic we have covered introduction of the topic. We saw about land, introduction of land, we saw different uses of land, classification of land and some problems with land. We have also seen conservative measures that we may take to conserve land. Okay, why it is important to conserve land, everything we have seen in detail about land. Okay, and in this video, that is the second part of topic, we are going to see some more interesting things about soil. Okay, so stay connected till the end of video. Fine, let's get started with the topic. Okay, so our second part, it gives an introduction of soil. What is soil? Soil है क्या? Okay, we know, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मट्टी बोलते हैं उसको, right? मिट्टी बोलते हैं. So what is soil? So here the definition of soil, when we go into the detail of soil, soil is the thin layer of grainy material that covers the earth. It can be fertile or infertile, and usually it is made up of organic matter, weathered rocks and minerals. सॉइल क्या होता है? ये जो अर्थ सरफेस पर हम लेयर देखते हैं वो क्या होता है? सॉइल होता है. अब सॉइल कैन बी फर्टाइल और इनफर्टाइल. नाउ व्हाट इज द फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल? इट हेल्प्स इन आवर एग्रीकल्चर प्रोसेस. सॉइल या लैंड जितनी फर्टाइल होगी उतना हम एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाएंगे. ओके, एंड सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, which would be of weathered rocks and minerals. Clear? I hope that you got to know about soil. ये introduction था soil का. Fine? Okay. So let's proceed with the other topic. Okay, we will see problems that we have faced, or problems that can happen in soil formation. So what are the problems that we may face? Okay, so the first one is landslides. अब ये landslide क्या होता है? लैंडस्लाइड क्या होता है? ज़मीन का धंसना. ओके, सो सॉइल फॉर्मेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? लैंडस्लाइड. नाउ व्हाट इज़ द लैंडस्लाइड? ये लैंडस्लाइड होता क्या है, किससे होता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द लैंडस्लाइड. ओके, सो इट इज़ बेसिकली द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप, एंड इट मोस्टली ऑकर्स ऑन हिली टेरेन्स. सी, ये लैंडस्लाइड क्या होता है? इट इज़ द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स. ओके, मतलब जो है रॉक्स जो है या बड़े बड़े पत्थर जो है वो हट जाते हैं. ओके, मूव हो जाते हैं. एंड वी कैन अल्सो से दैट सॉइल इरोजन कैन बी अ बिग कॉज ऑफ लैंडस्लाइड. ओके, और ये यूजुअली कहाँ होता है? इट ऑकर्स मोस्टली ऑन हिली रीजन्स, हिली टेरेन्स में होता है. फाइन, सो यू कैन सी इन इमेज, राइट, कि ये लैंडस्लाइड है क्या और कैसे होता है. ओके, एंड एग्जाम्पल ऑफ लैंडस्लाइड इज पंगी विलेज, जो हिमाचल में लैंडस्लाइड हुआ था. ओके, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल हमको समझने के लिए. Fine. Now let's see what are the different causes of landslide. Landslide के different causes क्या है? So first is intense rainfall, rapid snow melt, volcanic eruption, earthquake, फ्लडिंग्स एंड सो ऑन. ये जो मेन इम्पोर्टेंट कॉजेज़ है जो लैंडस्लाइड को कॉज करते हैं या लैंडस्लाइड फॉर्म करते हैं. सो व्हाट आर दोज? इंटेंस रेनफॉल, हेवी रेनफॉल जिसको हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश. सी, इवन इन योर लोकेलिटी आप देखे होंगे. ओके, बेसिकली इन कोंकण रीजन्स या फिर जहाँ पर जो है ईस्टर्न घाट्स है. ओके, जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं. सो इन दैट रीजन्स वी कैन सी लैंडस्लाइड्स. ओके, यूजुअली इन रेनी सीजन्स ये बहुत ज़्यादा होता है. Fine. Volcanic eruption, earthquake, these are also some most causes of landslide. Fine. I hope that this has been clear to you. Okay,
So we'll see with the mitigation mechanism. Now what is the mitigation mechanism? Mitigation mechanism मतलब क्या होता है, that in somehow in some or the other way you will help to reduce landslide. आप कुछ ऐसा करोगे जिससे लैंडस्लाइड कम होगे, ओके, जिससे ज़मीन का धंसना कम होगा. सो व्हाट इज़ दैट मिटिगेशन मैकेनिज्म? फर्स्ट वन इज़ हैज़ार्ड मैपिंग. ओके, व्हाट इज़ हैज़ार्ड मैपिंग? हैज़ार्ड मैपिंग क्या होता है? फाइन, विल सी अहेड. ओके, देन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल, इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल. ओके, देखो हैज़ार्ड मैपिंग का मतलब क्या होता है कि आप जिस एरिया में रहते हो, ओके, फर्स्ट यू शुड मैप वेदर दिस पर्टिकुलर एरिया, ओके, इट इज़ मीन्स इट इज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड. ओके, यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकती है या नहीं हो सकती है. सो दैट यू शुड डू अ मैपिंग, यू शुड स्टडी, और वहाँ पर मैप करना है, वहाँ पर अपन बोलते हैं ना, मार्क करना है, निशानी करनी है, दैट दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ नॉट सुटेबल फॉर हैबिटेट. ओके, यहाँ पर जो है इंसान बस नहीं सकते, ओके, बिकॉज इट इज़ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकती है. ओके, सो दैट इज़ हैज़ार्ड मैपिंग. कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल. रिटेंशन वॉल मतलब इफ़ दैट पर्टिकुलर इज़ हिली रीजन, तो हिली रीजन होने की वजह से वहाँ पे अगर लैंडस्लाइड का चांस है, सो यू विल गिव दैट पर्टिकुलर एरिया सपोर्ट विद द बाय कंस्ट्रक्टिंग रिटेंशन वॉल. मतलब क्या, बड़े बड़े पत्थरों से या कंक्रीट से अपन जो वॉल बनाते हैं, सो दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स. इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप वेजिटेबल्स लगाओ, प्लांट्स लगाओ, ओके, जो फिर उसके रूट्स जो है वो ज़मीन को पकड़ कर रहेंगे. ओके, एंड देर विल बी अ रिडक्शन इन द चांस ऑफ लैंडस्लाइड्स. एंड सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल. इफ़ वाटर लॉगिंग इज़ देयर, ओके, और वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी बहने का चांस है, तो क्या करना है, पानी को जाने के लिए एक अलग से रास्ता बनाना है. ओके, सो यू शुड गिव वाटर अ वे टू फ्लो. Fine. So this was about mitigation mechanism. We saw problems in soil formation. We saw what is the major problem, that is landslide. Landslide के causes क्या है ये भी हमने देखे. We saw mitigation mechanism, how you can reduce landslide. Okay, now we'll see what are the different factors, okay, that are helpful or responsible for soil formation. So different factors क्या है जो soil formation को help करते हैं. In that, first one is parent rock. Okay, now what parent rock does, it decides color, texture and chemical properties of soil. Next one is climate. It influences the rate of weathering and humus formation. What is humus हम end में देखेंगे. Okay, topography, it decides the composition of soil. Organic material, all these factors differs from place to place. Now see, typically when it goes to parent rock क्या करता है, it helps to decide or to form the color, texture and chemical properties of a soil. जैसा rock होगा वैसे ही उसकी soil बनेगी, right? Next one is climate. Climate क्या करता है, it influences the rate of weathering and humus formation. Now what is humus formation? Humus is the organic material made up from decaying of plants and animal. जो plants और animal के सड़ने की वजह से जो organic material बनता है, that is nothing but humus. Okay, next one is topography. Topography usually क्या होता है, it is the physical feature. Okay, जैसे कि hilly region है, फाइन, सो वहाँ का कंपोजिशन ऑफ सॉइल, यानी वो सॉइल किस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सुटेबल है. ओके, सो इफ़ यू गो इन आसाम, तो आसाम में क्या है, आसाम की टोपोग्राफी क्या है, दैट पर्टिकुलर सॉइल इज़ सुटेबल फॉर टी प्रोडक्शन. बट व्हेन यू कम डाउन, ओके, जब आप प्लेन रीजन्स पर आते हो, पंजाब में आते हो, सो वहाँ का जो सॉइल का कंपोजिशन है, इट इज़ सुटेबल फॉर crops such as rice and wheat. Okay, तो ये सारी चीज़ें हैं which decides soil formation. Okay, which helps in soil formation. अब आगे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सारे क्या है, डिफरेंट है. ओके, फ्रॉम रीजन टू रीजन. जैसे पंजाब में कोई अलग क्रॉप उगता है, महाराष्ट्र में कोई अलग क्रॉप उगता है, राइट? सो दिस पर्टिकुलर इट डिपेंड्स, ओके, ऑन दी प्लेसेस टू प्लेसेस. Cleared? Okay, now see, we have seen factors of soil formation also. हमने problems भी देखे. अब आगे हम क्या देखेंगे, we'll see soil degradation and conservation measures. See,
एज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, फर्टिलिटी कम होने की वजह से सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वी नीड टू कंजर्व, ओके, वी नीड टू कंजर्व सॉइल. Fine. So what are the different measures that we can adopt to conserve soil? In that, first one is mulching. Okay, now what is mulching? Covering between plants with straw to retain soil moisture. Okay, देखो दो जो रोज़ होते हैं जहाँ क्रॉपिंग्स होती है तो वहाँ पर जो है प्लांट के बीच की, दो प्लांट के बीच की जो जगह है उसको कवर किया जाता है. फाइन. अब उसको कवर करने से क्या होगा, सॉइल मॉइस्चर जो है मेंटेन रहेगा. ठीक है. एंड वो किससे कवर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ. Fine, you can see in the image. Okay, it is visible to you, right? So let's see what is the another conservative measure that we can adopt. So another one is contour barriers. Okay, contour barriers क्या होता है, it is making barriers with stones, grass along contours. Trenches are made in front of barriers to collect water. देखो ये जो बैरियर होते हैं, बैरियर मतलब ब्लॉकेज, आपको जो है ब्लॉकेज बनाना है. ओके, वाई, because you can collect the water. Okay, so to collect water or to give away to water, okay, आपको क्या है, trenches बनाने पड़ते हैं, right? So that is nothing but contour barriers. Fine. Next one is rock dam. Yes, rock dams क्या होते हैं, जो water flow होता है, okay, तो उसकी वजह से पानी जब टकराता है, जो हाइट है, हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, तो वो अपने साथ मिट्टी भी लेकर आता है, राइट. सो यू माइट सी कि समंदर के किनारे, ओके, इफ़ देर इज़ अ माउंटेन, सो द शेप ऑफ दैट माउंटेन, जस्ट बिकॉज कि पानी उस माउंटेन से टकराता है, सो शेप इज़ डिफरेंट ओवर देयर. ओके, और वो क्या करता है, अपने साथ जो है थोड़ी सी सॉइल, थोड़ी सी मिट्टी भी लेकर आ जाता है, कौन, पानी. सो वहाँ पर ऐसे एरिया में इफ़ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ रॉक डैम या फिर रॉक वॉल बनाते हो, तो उससे क्या होगा, जो पानी बहेगा इट विल जस्ट हर्ट रॉक और इट विल नॉट टेक अवे सॉइल. ओके, सो सॉइल इरोजन इससे हो सकता है, बच सकता है. फाइन. नेक्स्ट वन इज टेरेस फार्मिंग, या it's also very important again in preventing soil erosion. Okay, terrace farming क्या होता है, usually ये hilly regions में होता है. Okay, next one is intercropping. Okay, see, intercropping. Now what is intercropping? Inter means different. So intercropping क्या होता है, different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect soil erosion. अब ये भी एक मेथड है soil erosion को बचाने का. Okay, what is that? To plant different crops, okay, alternative crops in different rows. Okay, fine. How? एक रो में अगर आपने कोई एक क्रॉप उगाया है, सो यू शुड प्लांट सम अदर क्रॉप इन सम अदर रो, ओके, अल्टरनेट रो में, एंड दैट इज मीन्स ये क्या करेगा, इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन. क्लियर. नेक्स्ट वन इज कॉन्टोर प्लविंग. अब ये कॉन्टोर प्लविंग में क्या होता है, सी, प्लविंग जो होती है वो पैरेलल होती है इन हिली रीजन. सो व्हाट डज इट डू, इट हेल्प्स वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप. ओके, जो पानी है उसको स्लोप के नीचे बहने में ये हेल्प कर देता है. फाइन. सो इट हेल्प्स वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप. तो पानी जैसे ही फ्लो डाउन होगा स्लोप से, तो वहाँ पर भी क्या है, सॉइल इरोजन न होने के चांसेस है. Fine. So I think so it is better to conserve soil, right? It is very very important to conserve soil, because again it will be helpful for us to perform agricultural activities, right? So in order to conserve soil, the main important thing is our soil should be prevented from soil erosion, right? So see, we have seen different methods, and the last one that we are going to see, shelter belts. अभी shelter belts क्या होता है, जो usually coastal and dry regions पे बनाए जाते हैं, बनाए मतलब लगाए जाते हैं, plants लगाए जाते हैं, and rows of trees are planted just to check the wind movement to protect soil cover. Okay, usually क्या होता है, if मूवमेंट ऑफ द विंड इज इन वन डायरेक्शन, सो उसके सामने ही हम क्या करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे, जिसकी वजह से जो सॉइल कवर होता है, ओके, दैट विल बी प्रोटेक्टेड. क्लियर.
So see, it's a very important topic, okay, and till now we have seen about soil as well in this video. Fine, so we have seen what is soil, we have gone through problems in the formation of soil, we have gone through mitigation mechanism, हमने और soil erosion भी देख लिया, right, factors responsible for soil formation, and again we have seen what is soil degradation and some conservative measures. Fine, so we have covered good part of our topic, okay. So in the next video we will see the further part, हम आगे की वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे, okay. So be connected, fine, and we'll upload the video shortly, okay. So stay connected, and till that time have a great day, great time. Fine, take care, bye bye.